Welcome everyone. Today we are discussing about a chapter in structural analysis, very important topic, which is three moment equation. So the three moment equation express the relationship between the moment and the three successive support, the loading on the two span between those three supports, with or without the unequal settlement of the supports. This relation is derived from the consistency condition that the slope at the mid support calculated from the left span should be same as the slope at the middle support calculated from the right span. So इसमें ये होता है कुल मिलाकर कि तीन सपोर्ट्स हैं जिनमें अनइक्वल सेटलमेंट हो रहा होता है, और उन तीनों सपोर्ट्स में हमें क्या करना होता है कि राइट स्पान से मिड स्पान तक अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से सपोर्ट्स निकालें और राइट हैंड स्पान में राइट हैंड से मिड स्पान तक सपोर्ट निकालते हुए आए तो दोनों हमें इक्वल मिलना चाहिए. सो यूजिंग थ्री मूवमेंट इक्वेशन हम इसको समझ सकते हैं. सो दिस इज़ द डेरिवेशन पर्पस फिगर. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन सपोर्ट्स हैं आपके पास, दैट इज़ ए, बी एंड सी. देन ए और सी जो आपके पास है ये एक रोलर सपोर्ट है और बी जो है ये हिंज है. यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एक सेटलमेंट हो रहा है जहाँ पर बी जो है नीचे की ओर सेटल हो रहा है ए और सी. ए और सी जो हैं वो सेम लेवल पर हैं, तो उनके लेवल के लिए यहाँ पर एक लाइन, दो पॉइंट्स यहाँ पर हमने ले लिया है. जो ये लेवल जो है ये बी पॉइंट का लेवल है और यहाँ से ए पॉइंट का लेवल जो है दैट इज़ एच ए. ओके, दिस ये जो लाइन यहाँ पर कट कर रही है ये है ए टू डैश, ये यहाँ पर है ए वन डैश. ठीक है, यहाँ का जो एंगल है दैट इज़ थीटा, यहाँ का भी जो एंगल है ये है थीटा. ये एक टेंजेंट खींची गई है इस पर, ये है सी वन पॉइंट एंड दैट इज़ सी टू. और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज़ एच सी. सिंपल. देन आफ्टर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ L1 एंड सिंपल here this length is L2 from here to center. तो ये है तीन सक्सेसिव सपोर्ट्स के लिए वैल्यूज़. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है कि हमें इसका फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाना है ए बी और बी सी स्पान के लिए. सो ये हमारे पास एक फ्री मूवमेंट डायग्राम होगा. Three movement diagram. This is the three movement diagram. Here this is point capital A1 and this is point capital A2. The distance between A1 to this end, this is small a1, and here to here this is small a2. मैं आपको अभी इन सब का मतलब बताऊंगा. देन आफ्टर ये हमारे पास है एंड मूवमेंट डायग्राम. दिस इज द एंड मूवमेंट डायग्राम. एंड मूवमेंट डायग्राम में यहाँ पर हम इसको कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर दे रहे हैं. ओके, सो ये A1 था, ये A2 कर दिया. सो दिस एरिया, ये जो डॉटेड एरिया है ये A3 है, दिस इज A4, दिस इज A5, दिस इज A6. दिस हाइट इज MA, दिस हाइट इज MB, दिस हाइट इज MC. ओके, डिस्टेंस बिटवीन A3 to end, this is L1 by 3. A4 to this end, this length is 2L1 by 3. L1 is the length between MA to B. This is A to B, sorry, in this figure. And here also from here to here L2 by 3
and from here to here this is 2L2 by 3. Okay, so this is our whole condition for the figure. Okay, so इसको आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए. Then after what we have to do, we are moving for our derivation. So L1 L2 सारी लेंथ आपको पता चल गई. यहाँ पर मैं जो स्मॉल a1 कैपिटल a1 है इनकी इनके बारे में आपको बता दूँ. So the capital A1 is the area of free movement diagram in span AB. Similarly, A2 is area of free movement diagram in span BC, and small a1 is the distance of CG, center of gravity of A1 from support A. Similarly, A2 is the distance of CG of A2 from support C. Okay, so these are the values. Similarly, other values are there. Then after, in figure end moment diagram, third number figure shows the end moment diagram of span AB. The end moment diagram in this figure, this last figure, and the end moment diagram is splits in two parts. Okay, A3 and A4, similarly A5 and A6 in span BC and AB. But in span BC, the end moment diagram is split also in two parts, A5 and A6. So for the figure, I named the figure like this. Figure is figure number A, this figure is figure B, this is figure C. Okay, so from the figure A, A1 dash A2 dash divided by L1 tan theta, because ये जो थीटा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थीटा एंगल के लिए अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो A1 डैश A2 मतलब ये लाइन और डिवाइडेड बाई L1, ये जो लेंथ बेस है इसका ट्रायंगल का. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा थीटा. सिमिलरली दूसरे साइड के थीटा के लिए C1 C2 डिवाइडेड बाई L2. ओके, ये वाले थीटा के लिए यहाँ पर C1 C2 डिवाइडेड बाई L2. ओके, देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारे पास आ गया. इसके बाद बट यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, बट A1 डैश A2 डैश विल बी इक्वल टू HA माइनस A डैश 2. देखिए फिगर में अगर A1 डैश और A2 की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरी H है, H में से जो HA है पूरे में से, उसमें अगर मैं A2 डैश घटा दूं, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी. A1 डैश और A2 डैश यही वैल्यूज़ बचेंगी. तो यही हमने यहाँ पर लिखा. और इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि A1 A2 डैश क्या है, HA माइनस दिस इज HA माइनस deflection of A from tangent
ऑफ बी, ओके, टेंजेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ एच ए विल माइनस, सॉरी दिस इज माइनस डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मूवमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड ए about A. So I can write that HA will be equal to movement क्या होता है, सॉरी माइनस movement क्या होता है इसके लिए, the formula of movement is 1 by EI and EI1 that will be equal to A1 into A1 plus A3 into L1 by 3। देखिए वहाँ पर फिगर में L1 by 3 इज़ द लेंथ, ये देखिए ये लेंथ है L1 by 3 A3 की। तो सिमिलरली उससे मल्टीप्लाई करना है हमें सारे एरियाज़ में लेंथ का, प्लस A4 इंटू 2L1 by 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ HA माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माई मिस्टेक, माइनस 1 अपॉन ई आई वन A1 कैपिटल A1 A प्लस दिस इज A3 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो आई कैन राइट दैट हाफ, हाइट क्या है MA और बेस क्या है L1, और L1 यहाँ पर फिर से है तो L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, हाफ होता है तो 1/6 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्लस देन यहाँ पर भी सिमिलरली, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस, हाइट है MB, L1 स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, सो दिस इज़ 3, ओके। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास वैल्यू आएगी, द फाइनल वैल्यू इज़ HA माइनस 1/6 EI1, 6 कॉमन लेने पर 6 A1 प्लस MA L1 स्क्वायर प्लस 2MB L1 स्क्वायर, ओके। So this is my equation number 2, and equation number 1 I can say that this is my equation number, okay. So I got two equations. With the help of these two equation, similarly ये मैंने किसके लिए निकाला, एक तरफ के एरिया के लिए, एक तरफ के स्पान के लिए। अब मैं दूसरे तरफ के स्पान के लिए अगर मैं बात करूँगा तो सिमिलरली C1 C2 will be equal to C2 माइनस HC, जैसा मैंने देखा अभी हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C2 क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ C फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ B माइनस HC। और डिफ्लेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमने वहाँ पर लिखा था, मूवमेंट ऑफ M बाई EI डायग्राम बिटवीन B and C about C माइनस HC। तो सिंपल मूवमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/EI2, वहाँ पर I1 लिखा था, एरिया A2 इंटू A2 प्लस इधर साइड के एरियाज़ को अब लिखेंगे। सो A5 की डिस्टेंस कितनी है, 2L2/3 प्लस A6 क्या लेंथ है, L2/3
माइनस एच सी, जो ऊपर से चल ही रहा है. सो इन नेक्स्ट पेज we solving this, we got 1 upon ei2 into a2 प्लस एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, L2 MB 2L2 बाई 3 प्लस हाफ MCL2 L2 बाई 3 minus HC minus HC. So what we have to do, by solving this, I got 1 upon 6 ei2 6 a2 plus 2 mb l2 square plus mc L2 square minus HC. This is my equation number 3. Now, by substituting equation number 2 and 3 in equation number 1. सो इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करने पर वी गॉट एच ए डिवाइडेड बाई L1 विल बी इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, दिस इज माइनस 1 बाई 6 ei1 L1 इंटू 6 a1 स्मॉल a1 प्लस MA L1 स्क्वायर प्लस 2 MB L1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6 ei2 L2 6 a2 प्लस 2 MB L2 स्क्वायर प्लस MCL2 स्क्वायर माइनस HC बाई L2. Okay, so for finalizing this equation we multiplying it by 6e throughout and rearranging. So we got MA L1 by I1 plus 2 MB L1 by I1 plus L2 by I2 plus MC L2 by I2, that will be equal to minus 6 A1 by I1 L1 minus 6 A2 small a2 by I2 by L2 plus 6 EHA L1 plus 6 EHC by L2. इन सारे इक्वेशंस की वैल्यूज़ मैंने आपको पहले बता रखी है. ठीक है कि A1 का मतलब क्या होता है, HA का मतलब क्या होता है, HC का मतलब क्या होता है. ठीक है. So this equation is known as the three moment equation and it is also refer for the Clapeyron's theorem. ठीक है. तो इसे फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे क्लैपेरॉन्स थ्योरम, क्लैपेरॉन्स थ्योरम इसको बोलते हैं. क्लैपेरॉन्स ने ही, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए.
अब इसका एप्लीकेशन जब होता है तो ये मूवमेंट जो होता है, ये जो इक्वेशन होती है ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है। सो एप्लीकेशन जब होता है तब ये चेंज हो जाती है। तो मैं आपको एप्लीकेशन के लिए भी थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये एक, यहाँ पर आपका एक बीम है, this is your beam. Okay, here a UDL is working, here a point load, here a UDL and a point load is working. This is W1 per unit length, this is capital W1, capital W2, capital W3. This is a small W2 unit length. Okay, this is a typical continuous beam. Okay, there will be more span. This is A, B, C, D. यहाँ पर बहुत सारे स्पान हैं, मतलब 3 मूवमेंट इक्वेशन यहाँ पर फॉलो हो सकती है। इफ़ देयर इज़ नो सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट्स, अगर सपोर्ट्स का सेटलमेंट नहीं होता है, सो जो हमारी इक्वेशन है, इफ देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, so equation A reduced to, क्योंकि देखिए इक्वेशन जो थी हमारी A, ये प्रीवियस इक्वेशन जो थी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो HA और HC वैल्यूज़ हैं, ये कब थे? जब वहाँ पर सेटलमेंट हो रहा था। वो उसके बीच की डिस्टेंस थे कि जो C वाला जो नीचे आ गया था, B और C के बीच की डिस्टेंस HA था और C और B के बीच की डिस्टेंस HC था। तो अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी MA L1I1 प्लस 2MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2, that will be equal to -6 A1 I1 L1 minus 6 A2 divided by I2 L2. Okay, this is equation number capital B. Okay, so ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है, सेटलमेंट वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। देन आफ्टर अगर यहाँ पर मैं ये बोलूँ, ये इक्वेशन नंबर बी आ गई। सो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि इफ़ द मूमेंट ऑफ इनर्शिया is same throughout the equation B। इक्वेशन नंबर बी में अगर पूरे बीम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहा तो इक्वेशन बी रिड्यूस टू, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का भी पोर्शन है। अगर पूरे बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहा तो ये रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन, और ये इक्वेशन बन जाएगा MAL1 प्लस 2MB L1 प्लस L2
plus MC L2, that will be equal to minus 6A1 A1 divided by L1 minus 6A2 A2 divided by L2. This is my equation number C, and this equation number C is my final equation. But final equation तो equation number 1A है, ठीक है. बट ये अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है और दूसरा थ्रू आउट द बीम इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, सो ये इक्वेशंस हमारे रहेंगे. सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, काफ़ी सिंपल वे में मैंने इसका डेरिवेशन कराया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जिससे आपको थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसके बेस पर सिंपल सा सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो इस वीडियो में इतना ही. कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए. तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.